Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is the p block elements. P block elements are basically those elements where the last electron of the element goes to p subshell, and the p block consists of group number 13 to group number 18 elements. These are in total 6 groups where last electron enters p orbital. क्योंकि p orbital में वैसे भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए इसमें 6 ग्रुप्स हैं p ब्लॉक में. तो group number 13 and 14 we have done in the previous class. In this class we shall be doing from group number 15 to group number 18 up to group number 18. Let us talk about the general electronic configuration of this group. So that is NS2 NP126. अब इस बात का मतलब क्या है, p ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP126 के वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो s ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, और p ब्लॉक जैसे ही शुरू होता है तो वैलेंस शेल का p ऑर्बिटल जो है उसकी फिलिंग शुरू होती है. जब p में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो p ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप कंस्टिट्यूट होता है, उससे p2 कॉन्फ़िगरेशन से सेकंड, p3 p4 p5 p6, इस तरह से टोटल ये 6 ग्रुप्स जो हैं इस ब्लॉक में हैं. Now the question that is for you, you have to investigate this thing, that there is only one atom which is an exception to this general electronic configuration NS2 NP126. However, it has been placed in p block, so find it out. It will be interesting. Now we start with group 15, or which is also known as nitrogen family. ग्रुप 15 के जो मेंबर्स हैं वो इस तरह से हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रिबियम, रादर इट शुड बी मोस्टली इट इज कॉल्ड एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम. लेट मी रिपीट इट अगेन: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम. नाउ the atomic number of nitrogen is 7. Phosphorus is 7 plus 8, that is 15. And after phosphorus, arsenic is 33. 15 plus 18, 33. Again 33 plus 18, that will be 51. And 51 plus 32, that is 83. 83 plus 32, that is 115. यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है? मॉस्कोवियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ये इसमें याद रखें. और रेडियो एक्टिव है, एंड मोर ओवर इसकी हाफ लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट है, सो वेरी लेस हैज बीन स्टडीड अबाउट मॉस्कोवियम. नाउ लेट अस सी the electronic configuration of these elements. Then from their electronic configuration we will find out their general electronic configuration. Nitrogen is 1s2 2s2 2p3. इसको वैसे नोबल गैस के इससे लिखना हो तो 1s2 means helium, and outside helium it is 2s2 2p3. Phosphorus is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, or we could have written it like this: neon 3s2 3p3. Similarly, arsenic is 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3 और यहाँ तक it is 8 argon, 3 rather यहाँ तक नहीं, यहाँ तक argon यहाँ तक होती 18, it is 3d10, 4s2, 4p3. This is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4d10, 5s2 and 5p3. So from here up to this, up to this point, it is noble gas krypton, and apart from krypton it has 4d10, 5s2 and 5p3. Then bismuth, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, then 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p3. So यहाँ तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ज़ीनॉन, और ज़ीनॉन के सिवाय इसके पास है 4f14 and then 5d10 and 6s2, 6p3. हमें जो चीज नोटिस करनी है और ध्यान में रखनी है वो ये है that these two are just simple configurations. Here for the first time we are seeing 10 electrons have entered 3d orbital. Again 4d10, here 4f14, d में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं ही हैं. ये चीज वैसे नोटिस में रखनी है क्योंकि इसका हमें आगे सिग्निफिकेंस इस कॉन्फ़िगरेशनल वेरिएशन की पता चलेगी. लेट अस कम टू द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो वी कैन से दैट इन द वैलेंस शेल that is highest principal shell which has been occupied, 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, ये 3d तो लोअर है, हाईएस्ट 4 चल रहा है इसका, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, 5 और 4 लोअर हैं, 6s2, 6p3. Means we can conclude that the nitrogen group has a general electronic configuration of ns2, np3. And what is special about this configuration? The p orbital, np3, p orbital is exactly half filled. और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की ये जो स्पेशलिटी है, ये इस ग्रुप की बहुत सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे इन्फ्लुएंस करने वाली है. इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है. नाउ वी टॉक अबाउट देयर अकरेंस. नाइट्रोजन, it is present in atmospheric gases
and 78% of the atmospheric gases is nitrogen gas. Nitrogen is again present in Earth crust also. Nitrogen is very abundant, but its number is 33rd most abundant element in Earth crust. Earth crust में पाए जाने के सीक्वेंस को देखा जाए तो नाइट्रोजन का नंबर जो है वो 33वें नंबर पे आता है. इससे पहले 32 और एलिमेंट हैं जो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. इन अर्थ क्रस्ट NaNO3 which is also called child saltpeter or potassium nitrate which is termed as Indian saltpeter. तो इन दो फॉर्म्स में मेनली ये पाया जाता है. इसके सिवाय प्रोटीन्स, प्लांट्स और एनिमल्स में नाइट्रोजन इज फाउंड इन abundance. Then phosphorus. Phosphorus is found in minerals mainly which are fluorapatites. It is also found in phosphoproteins in milk and eggs, bones and living cells. बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये यूजुअली सल्फाइड ओर्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं. मॉस्कोवियम जो है रेडियो एक्टिव है, रादर इट इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट. Synthetic radioactive element with very short half life period. It is very short lived. और ये जो फॉस्फोरस है और नाइट्रोजन है, ये हमारे डीएनए, आरएनए, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट मटेरियल होते हैं. एटीपी में भी फॉस्फोरस जो है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का भी फॉस्फोरस जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है. Now we come to next property, that is atomic and ionic radius. देखें एटॉमिक रेडियस के नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाते हुए जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का रहेगा, लगभग वही ट्रेंड इज फॉलोड बाय द आयनिक रेडियस. सो हमें समझना क्या है, एटॉमिक रेडियस समझना है ढंग से कि क्यों वेरिएशन और किस तरह की. सिंपल सी बात कहें तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, क्योंकि डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने का मतलब है हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, और जब भी हम डाउन द ग्रुप चलेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है. मेजर चीज क्या है कि इंक्रीज इज शार्प फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस. नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक गए तो नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस है 70 पिकोमीटर और फॉस्फोरस का है 110 पिकोमीटर. सो दिस इंक्रीज इज वेरी शार्प. लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ तक, आर्सेनिक का एटॉमिक रेडियस है 121 पिकोमीटर और उसके बाद एंटीमनी का 141 आया इन बिटवीन, और बिस्मथ का जो है वो 148 पिकोमीटर है. सो हम देख सकते हैं नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सीधा 40 पिकोमीटर की छलांग इसने लगा दी है. लेकिन फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीन एलिमेंट्स हैं, तो 121 से सिर्फ 148 तक. दिस इंक्रीज इज वेरी स्मॉल. तो ये एक आप ये इन जनरल तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक शार्प बहुत इंक्रीज बहुत शार्प है, बट आफ्टर आर्सेनिक अप टू बिस्मथ इंक्रीज इज वेरी स्मॉल एंड ग्रेजुअल. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रीजन. क्या होता है ये देखें. दिस इज understand the variation in atomic radius, we will have to see these figures. This is nitrogen, and in nitrogen there are 7 protons inside the nucleus, but it is in its first principal shell there are just 2 electrons, 1 s2, and outside it 2 s2, 2p3. When we come to phosphorus, phosphorus has 15 protons inside its nucleus, and outside that this is 1s2, 2s2, 2p3, then is 3s2 and 3p3. So simply when we go from nitrogen to phosphorus, nuclear charge is increasing, but in nitrogen there are just 2 principal shells.
In phosphorus, we have added one more principal shell, that is third principal shell. So when a new principal shell is added, automatically thickness या fatness of atom will increase, and moreover कि जब हम एक नया प्रिंसिपल शेल एटम में ऐड कर दे रहे हैं, नाइट्रोजन में 2 प्रिंसिपल शेल थे, फास्फोरस में 1, 2, 3 हो गए, तो 3 प्रिंसिपल शेल मींस 3 सर्कल्स लग गए न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो इसका साइज बढ़ना ही था। एंड मोर ओवर जब 15 प्रोटॉन्स हैं इसमें, मान लिया कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है फास्फोरस में नाइट्रोजन से, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का काम है लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि थर्ड प्रिंसिपल शेल में जो 3s2 3p हैं, इनको अंदर की तरफ खींच के रखना। जितना ही न्यूक्लियस इनको अंदर की तरफ खींच लेगा, उतना ही क्या होगा, एटॉमिक रेडियस स्मॉल रहेगा। लेकिन न्यूक्लियस से चार्ज जो बाहर जा रहा है, वो सबसे पहले 1s2 वाले ऑर्बिटल्स उसको स्क्रीन कर रहे हैं, फिर यहां से जो बच के न्यूक्लियर चार्ज निकल रहा है उसको कौन स्क्रीन कर रहा है, 2s2 और 2p3 के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज को फिर से उसको स्क्रीन करेंगे, यानी कि एक फिल्टर यहां लग गया, दूसरा फिल्टर यहां लग गया, और उसके बाद फिल्टर इज वेरी क्रूड एंड रफ टर्म बट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड इन आवर लैंग्वेज, इसलिए मैंने फिल्टर शब्द यूज किया। इस फिल्टर को एग्जैक्टली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज थर्ड प्रिंसिपल शेल में पहुंचने से पहले फर्स्ट प्रिंसिपल शेल और सेकंड प्रिंसिपल शेल में एस और पी में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने इसको स्क्रीन किया, शील्डिंग इफेक्ट दिया या स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया। तो छन छन के यहां पे बहुत कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंचा, और इस कारण न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे उतना कंट्रोल नहीं हो पाया जितना अगर ये नहीं होते तो ये कर लेता। तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन किया एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स ने, और बाहर वो न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम पहुंचा, तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम अंदर की तरफ खींच पाया, और जब अंदर की तरफ नहीं खींच पाएगा तो ये काफी फैल के खुले होके बैठेंगे और एटॉमिक रेडियस लार्ज होगा। वही हुआ, इसकी अपेक्षा नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस का एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है। तो फिर अगर वैसा है तो आर्सेनिक में भी एक प्रिंसिपल शेल, दूसरा आर्सेनिक की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो तो वो 1s2 2s2 2p3 यहां आएगा, 3s2 3p3, हाँ इसको लिखना ही पड़ेगा, 1s2 2s2 2p3 2s2 2p6 and 3s2 3p6 3d10 and then 4s2 4p6। मैंने पहले कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे भी बोला था कि इन ऑर्बिटल्स में आफ्टर आर्सेनिक 10 इलेक्ट्रॉन्स हैव एंटर्ड डी ऑर्बिटल। आर्सेनिक में पहली बार ऐसा हुआ। अब क्या होना था, प्रोटॉन्स का काम था अंतिम इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचना, और ये जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d के इलेक्ट्रॉन्स थे, इनका काम था न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकना, स्क्रीनिंग इफेक्ट करना। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो कि डी ऑर्बिटल में चले गए हैं, तो डी ऑर्बिटल की शेप जो है वो डिफ्यूज्ड है, ऐसी शेप है कि ये जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से नहीं रोक पाएंगे। ये बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देंगे। इनके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देने को आप ये समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से धोखा दे गए, किसके साथ मिल गए, न्यूक्लियस के साथ। जब ये न्यूक्लियस के साथ मिल गए, मतलब वैसे अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, पर इन्होंने स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दिया प्रॉपरली, तो ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की साइड नहीं फेवर नहीं की, इन्होंने ये किसकी फेवर में चले गए, एक तरह से न्यूक्लियस के फेवर में। अब न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाएगा और वो क्या करेगा, इनको कस देगा तो पर क्योंकि एक लेयर तो यहां पे एक्स्ट्रा बिछी है, तो उतना ये साइज तो बढ़ेगा, लेकिन जितना इन्होंने फैल जाना था, जैसे 3 में इतना फैल गए थे, तो 4 प्रिंसिपल शेल्स में तो काफी ज्यादा फैल जाना था, बट ड्यू टू वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स विच हैव एंटर्ड 3d ऑर्बिटल, so size has increased but the increase is very small। फिर उसके बाद इसमें आए एंटीमनी में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10
then is 4s2 4p6 4d10 and then lastly 5s2 5p3. एंटीमनी में भी वही स्टोरी चल रही है. 3d10 तो था ही, अब 10 और इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, 4d10 में चले गए. दे गिव वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू डिफ्यूज शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, और उस चीज का खमियाजा क्या होगा, न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा और इन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को कस के अंदर की तरफ खींच लेगा. हालांकि क्योंकि चौथे के बाद पांचवी लेयर भी चढ़ गई है इसलिए साइज बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा. 120 के बाद सीधा 141 पे बात रुक जाएगी. लास्ट में बिस्मथ में आए तो उसमें तो एक नया काम और हो गया होगा. यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पे 3s2 3p6 3d10, यहाँ पे 4s2 4p6 4d10 के सिवाय 4f14, ये एक नई एंट्री f ऑर्बिटल वाली हो गई है. देन इज फिर यहाँ 5s2 5p6 5d10, देन इज 6s2 6p3. बिस्मथ में देखें तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन. देखिए वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट 14 इलेक्ट्रॉन पहली बार f ऑर्बिटल में भी एंटर कर गए हैं, जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से भी बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं. इसीलिए जो एटॉमिक रेडियस है वो अब की बार इसका, ये जो एंटीमनी था इसका एटॉमिक रेडियस 141 तो हो गया था. आर्सेनिक का 121 और 141, कम से कम 20 यूनिट्स की लीप तो इसने ले ली थी. यहाँ पे एंटीमनी के बाद बिस्मथ में केवल 7 यूनिट्स की, बिस्मथ का एटॉमिक रेडियस है 148 पिकोमीटर, और इतना कम इंक्रीज जो है दैट इज अगेन कि पहली बार 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में चले गए हैं, विच गिव वेरी 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 पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड ड्यू टू विच साइज ऑफ दिस एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज्ड, बट द इंक्रीज इज प्रैक्टिकली वेरी नॉमिनल. तो इस चीज को अगर हम सम अप करना चाहें, लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे कि इंक्रीज इन रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस इज जस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, बट न्यू शेल एंड स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट गिवन बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s and p orbital, inner s and p orbitals. But when we go from arsenic to bismuth, there is very small increase which is observed in size due to poor screening effect of electrons of inner d orbital, कहेंगे हम आर्सेनिक और एंटीमनी तक, and f orbitals in bismuth. So jointly हम कह सकते हैं कि when we go from arsenic to bismuth, the small increase in size is due to poor screening effect by the electrons of inner d and f orbitals. So आज यहीं तक करते हैं. Thank you very much.